Hello everyone. So as you know that we have already discussed some of the properties of this chapter 7 triangles and congruence of triangles we have discussed in our introduction part. So now in this video you will see all the solutions of this exercise 7.3. Okay, one by one I am going to solve all the questions. Question number 1. In question number 1, what is given? See, we are given with a triangle that is ABC. I'll draw it. This one is the triangle A, B, C we are given with. Then triangle DBC, inside it कुछ इस तरह से यहाँ पे एक और ट्राइंगल बन रहा है अंदर. This one, triangle DBC. You can see two triangles are there, ABC, DBC. These are the two triangles I am talking about. Okay, and this point is given as P. This point is P. And these both triangles, triangle ABC, DBC, are on same base BC. दोनों same base पे हैं BC. And vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, show that. So we need to show. What we need to show one by one, we'll write here. Triangle ABD, congruent. These are the things to show. Triangle ACD, this is the first thing. Then triangle ABP, congruent. Triangle ACP. Then third thing, AP bisects angle A as well as angle D. Then fourth thing, AP is perpendicular bisector of BC. Okay, these are the things we need to show. These four things, 1, 2, 3, 4. These are the four things we have to show in this question. So as you know that it is given that ABC and DBC are isosceles triangle. That means this side AB and this AC are equal. This DB and DC, this side are also equal, because it is given that ABC and DBC are what? Isosceles. Now the first thing, just come over this first thing. What is given? Means what we need to prove. Triangle ABD congruent to triangle ACD. So look for triangle ABD and ACD. ABD, this is the triangle ACD. So we can easily congruent them. हम easily कर सकते हैं. Just look in triangle ABD and triangle ACD. These are the two triangles I am talking about, ABD and ACD. Now look, this AB and AC are equal. AB is equal to AC. It is given, already given. Then this AD, it is common in both the triangles. AD equal to AD, common. Then the third thing, this BD and CD are equal. BD equal to CD, that is given. So therefore the triangle ABD is congruent to triangle ACD by side property. So these two triangles are congruent now. Triangle ABD, triangle ACD. These two triangles are what? Congruent. Now just for an instant, if these two triangles are congruent, अगर ये दोनों triangle congruent से, can I write angle 1 and angle 2 as equal? क्या मैं angle 1 और 2 equal लिख सकता हूँ? Yes, I can write angle 1 equal to angle 2 by CP/CT. By CP/CT property I can write that angle 1 and 2 are equal. Now coming to the second part, क्योंकि देखो फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं पे प्रूव हो गया है. ये फर्स्ट पार्ट था, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD. देख लो फर्स्ट पार्ट वी हैव डन. बट सी व्हाट वी आर डूइंग. हमने जब फर्स्ट पार्ट किया तो मैंने ये चीज़ एक्स्ट्रा ली है. क्यों? बिकॉज वी विल नीड दिस. जब हम ट्राइंगल ABP, देखो ABP वी आर टेकिंग इन ट्राइंगल ABP. जस्ट सी द ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, यही तो चाहिए. एंड ट्राइंगल ACP.
ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करने हैं, ट्राइंगल ए बी पी, ट्राइंगल ए सी पी। देखो ए बी पी ए सी पी, अब ए बी एंड ए सी दीज साइड आर गिवन इक्वल, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन इक्वल, सो वी विल राइट जस्ट गिवन। देन सी, जब हम ए बी पी इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और ए सी पी, मैंने एंगल 1 और 2 सी पी सी टी से ऊपर इक्वल दिखाया है, सो नाउ आई कैन यूज, अब मैं यूज कर सकता हूँ उसको, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्या लिखूंगा मैं रीजन में, वट आई एम गोइंग टू राइट, प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव किया हुआ है। देन ए पी, सी दिस साइड, इस साइड को देखो ए पी, दिस ए पी इज वट कॉमन, सो ए पी इक्वल टू ए पी, दैट इज कॉमन। सो देयरफॉर नाउ व्हाट वी आर हैविंग, देख लो, ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी पी बाय विच प्रॉपर्टी वी कैन राइट, किस प्रॉपर्टी से हम ये लिख सकते हैं, इट इज बाय सी पी, ओ सॉरी, साइड एंगल साइड, side angle side. Now just see, if these two triangles are congruent, which one, if these two triangles ABP and ACP, if these two triangles are congruent, can I write that this BP and CP are equal, क्या मैं इसको equal लिख सकता हूँ BP and CP, yes I can write that BP equal to CP by CPCT, हम CPCT से इसको लिख सकते हैं that BP and CP are इक्वल, बी पी और सी पी क्या हैं, इक्वल हैं। नाउ द सेम थिंग, अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, ट्राइंगल ए बी पी, देखो ट्राइंगल ए बी पी एंड ए सी पी, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो कैन आई राइट दैट दिस एंगल 3 एंड एंगल 4 आर इक्वल, येस आई कैन राइट दैट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। नाउ एंगल 3 एंड एंगल 4 आर इक्वल बाय सी पी सी टी अगेन। अब एक चीज़ देखो, द सम ऑफ एंगल 3 एंड 4, सम ऑफ एंगल 3 और 4 दोनों का सम कितना आ रहा है, द सम ऑफ एंगल 3 एंड 4 इट इज 180, द सम इज 180, यू कैन राइट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180। वाई आई एम राइटिंग, सी द फिगर, दोबारा देख लो, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है दोनों का, लीनियर पेयर, सो दैट्स वाई लीनियर पेयर। सो दैट मीन्स इफ एंगल 3 एंड एंगल 4 इज 180, सो 2 टाइम्स एंगल 3 आई कैन राइट, क्योंकि 4 और 3 तो दोनों इक्वल हैं, इक्वल टू 180, एंड एंगल 3 विल बी इक्वल टू वट, 2 से कैंसिल आउट 90, तो एंगल 3 आ गया 90। अभी देखो मैंने क्या दिखा दिया है, मैंने शो कर दिया है कि बी पी और सी पी इक्वल हैं, फिर मैंने शो कर दिया कि एंगल 3 और 4 दोनों 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर, क्योंकि बी पी एंड सी पी इक्वल हैं, देख लो बी पी एंड सी पी इक्वल हैं, एंगल 3 90 है, दैट मीन्स आई कैन राइट देयरफॉर angle 3 is 90, so we can write that triangle AP is perpendicular bisector of what, ABC, BC का perpendicular bisector है। now you will say कि सर फोर्थ पार्ट हो गया है, थर्ड सेकंड पार्ट हो गया, फर्स्ट हो गया, बट व्हाट अबाउट दिस थर्ड पार्ट, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। देखो ना, मैंने एंगल 1 और 2 इक्वल दिखा दिया था, तो AP ने एंगल A को तो बाइसेक्ट किया था, देखो एंगल A को बाइसेक्ट किया था, यहीं पे आ गया है, एंगल A इज बाइसेक्टेड, बट इसको कैसे दिखाएंगे कि ये वाला एंगल, क्योंकि D को देखो ना एज वेल एज एंगल D, तो D को बाइसेक्ट करने के लिए ये दो एंगल इक्वल होने चाहिए। अब ये 5 और 6 इक्वल कैसे आएंगे, हाउ दिस विल बी इक्वल, एंगल 5 और 6 कैसे इक्वल आएंगे, हाँ, तो एंगल 5 और 6 इक्वल करने के लिए हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर देंगे, ट्राइंगल बी डी पी सी डी पी। देखो इन ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, दो ट्राइंगल्स है ना, बी डी पी एंड सी डी पी, देख लो बी डी पी एंड सी डी पी, सो दैट मीन्स देखो बी डी सी डी इक्वल डी पी कॉमन बी पी एंड सी पी, साइड 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 से कॉन्ग्रेंट, तो राइट यहाँ पे फटाफट लिख देंगे बी डी इक्वल टू सी डी गिवन, ठीक है, डी पी इक्वल टू डी पी कॉमन, फिगर में देख सकते हो तुम, फिगर ऊपर जो बनाई हुई है ना उसको पॉज करके देख सकते हो वहाँ पे, डी पी इक्वल टू डी पी कॉमन एंड देन बी पी इक्वल टू सी पी प्रूव्ड अबव। तो देयरफॉर ट्राइंगल बी डी पी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल
CDP बाय साइड साइड साइड। अब ये दो ट्राइंगल्स देखो, अभी हमने ट्राइंगल BDP और CDP को कॉन्ग्रेंट कर दिया, तो एंगल 5 और 6 क्या हो गए, इक्वल। तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर दैट एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। और एंगल 5 और 6 इक्वल होने का क्या मतलब है, एंगल 5 एंड 6 आर इक्वल एंड 1 एंड 2 आर इक्वल। तो इसका मतलब AP जो है, दिस AP बाइसेक्ट्स एंगल A को भी बाइसेक्ट किया है, एंड ऑल्सो एंगल D को भी बाइसेक्ट किया है। सो दिस इज़ द वे वेर यू कैन राइट योर सॉल्यूशन। ट्राई टू पॉज द वीडियो एंड राइट इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, खुद से सॉल्व करो। नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द सेकेंड वन। Okay, in the second question we are given with AD is an altitude of an isosceles triangle ABC। एक isosceles triangle बना लेते हैं ABC where AB and AC are equal। Suppose this is the triangle I am taking, isosceles triangle, this one ABC, and in this triangle this AB side and AC are given equal and AD is given as altitude। This one is given as altitude। Altitude you all know is perpendicular, हमेशा perpendicular होता है AD, this one। Now AB and AC are equal, okay। Then to show, क्या show करना है हम लोगों को, proof क्या करना है। The first thing we need to prove is AD bisect BC। AD bisect BC, AD BC को bisect करता है। The second thing, AD बाइसेक्ट्स एंगल A, बाइसेक्ट्स एंगल A। देखो AD BC को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट BD और CD इक्वल दिखाना पड़ेगा। सो हमारे पास वही है, हर चीज़ का एक ही सॉल्यूशन, कॉन्ग्रेंसी प्रूफ कर दो। ट्राइंगल ADB ADC दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे। तो प्रूफ करते हैं। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, ये दो ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ, ट्राइंगल ADB एंड ADC। देखो ADB ADC। नाउ देखो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल, क्योंकि परपेंडिकुलर, उसने देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि AD एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर है BC के। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90, दोनों क्या है 90 डिग्री। देन AB इज इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ठीक है, दैट इज गिवन। And then this AD equal to AD, that is common। So therefore the triangle ADB congruent हो गया triangle ADC by which property। ये थोड़ा सा सोचो पोज करके वीडियो को, आंसर तो वीडियो में देता ही हूँ मैं, that is RHS प्रॉपर्टी। देख लो, राइट एंगल, फिर हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, RHS। So now if these two triangles are congruent, then I can easily write that BD and CD are equal। तो मैं ये लिख सकता हूँ अब, therefore I can write that BD equal to CD by CPCT। और BD और CD इक्वल होने का क्या मतलब है, अगर BD और CD इक्वल है तो इसका मतलब AD ने क्या किया है, AD ने बाइसेक्ट कर दिया है BC को। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो AD बाइसेक्ट्स, therefore AD बाइसेक्ट्स BC एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल A। अब देखो ना, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, तो इसका मतलब एंगल 3 और 4 क्या हो गए, इक्वल। एंड ऑल्सो वी कैन राइट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। तो देयरफॉर इसमें क्या लिख देंगे, AD बाइसेक्ट्स एंगल A, एंगल A को भी बाइसेक्ट कर दिया, हो गया। ओके, सो ट्राई टू वॉच द वीडियो, पॉज इट डाउन एंड देन राइट। Okay, so then question number 3, let's see what is given in question number 3. We are okay, two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median। Okay, again we are given with two triangles here, I'll just draw these two triangles। Okay, these are the two triangles, one is triangle A B C, then P Q R। now it is given that AB is equal to PQ, AB and PQ are equal। then it is also given that BC and QR, BC, this side BC and QR are also equal। and then median, this is the median, what is this, median AM, and PN is also the median,
यू ऑल नो अबाउट मीडियन, पढ़ चुके हो तुम. मीडियन इज व्हाट, विच डिवाइड्स द साइड इनटू टू इक्वल पार्ट, जो दो इक्वल पार्ट में, मतलब बी एम और सी एम इक्वल हो जाएगा. ओके, देन दिस ए एम इज इक्वल टू दिस पी एन, ये भी इक्वल है. सो व्हाट वी नीड टू शो, वी नीड टू शो, क्या प्रूव करना है वो बहुत ज़रूरी है लिखना कि हम प्रूव क्या करने जा रहे हैं. वी नीड टू शो दैट ट्राइंगल ए बी एम, ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, पी क्यू एन. देख लो, ए बी एम पी क्यू एन, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है. देन ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू आर. ए बी सी को देख लो, ये ए बी सी और पी क्यू आर. पहले तो आधा ट्राइंगल आधे के साथ कॉन्ग्रेंट करना है, फिर पूरे को पूरे के साथ. सो हाउ डू वी प्रूव, कैसे करना है, लेट्स सी. अच्छा एक चीज़ देखो, इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये पूरी बी सी साइड जो है ना, ये क्यू आर के इक्वल है. बी सी एंड क्यू आर इक्वल. बी सी जो है क्यू आर के इक्वल है. अगर मैं यहाँ पे हाफ ऑफ बी सी कर दूँ और हाफ ऑफ क्यू आर, तो वो भी तो इक्वल आएगा. देखो ना, मैंने दोनों साइड, पूरी साइड बी सी और क्यू आर इक्वल हैं, उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है बी सी एंड क्यू आर इक्वल. मैंने क्या किया, बी सी का हाफ किया और क्यू आर का भी हाफ. अब बी सी का हाफ करने पे क्या आएगा, बी एम, बी एम, और यहाँ पे क्यू आर का हाफ करने पे क्या आएगा, क्यू एन. ऐसा क्यों, क्योंकि ए एम एंड पी एन ये क्या हैं, आर मीडियंस, मीडियंस हैं वो. तो इसका मतलब बी सी का अगर हाफ करूँ ना, तो ये ए एम इसको आधे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं बी एम में, पी एन इसको डिवाइड कर रहा है तो क्यू एन, इसलिए हाफ भी उसका इक्वल लिया है हमने. ठीक है, तो अब यहाँ पे चेक करो, इन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल ए बी एम इसकी बात कर लेते हैं, ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, यही तो कॉन्ग्रेंट करना है. देख लो, ए बी एम पी क्यू एन, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन. देख लो, ये दो ट्राइंगल लिए मैंने छोटे वाले, ए बी एम पी क्यू एन. ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी एंड पी क्यू आर इक्वल. ओके, सो व्हाट आई विल राइट, दैट इट इज़ गिवन, दिया हुआ है. देन दिस ए एम एंड पी एन आर इक्वल, ए एम इक्वल टू पी एन, इट इज ऑल्सो गिवन. नाउ दिस बी एम एंड क्यू एन आर इक्वल, अब ये दिया हुआ नहीं था, बी एम इक्वल टू क्यू एन, ये हमने ऊपर क्या किया है, प्रूफ. तो मैं क्या लिखूँगा, प्रूव्ड अबव, ऊपर किया है हमने. सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी एम will be congruent with triangle PQN by साइड साइड साइड. एसएसएस प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट. ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए. तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, इफ़ दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, कैन वी राइट दैट दिस एंगल बी एंड एंगल क्यू आर इक्वल. क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, येस वी कैन राइट दैट एंगल बी एंड इक्वल टू एंगल क्यू बाय सी पी सी टी. अब ये लिखा क्यों है मैंने, क्योंकि मैं इसको यूज करूँगा इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए. अभी देखो हमारा काम आधा हुआ है, अभी आधा काम क्या है कि हमें ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, इनको भी तो कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर को. तो देखो, ए बी और पी क्यू इक्वल हैं, ए बी इक्वल है पी क्यू के, इट इज़ गिवन, ये तो गिवन है. देन देखो, एंगल बी और एंगल क्यू हो गया इक्वल, हमने प्रूव किया है, तो मैं लिखूँगा एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, प्रूव्ड. ये क्या है, प्रूव्ड. देन देखो, बी सी और क्यू आर इक्वल है, वो भी गिवन था, क्योंकि ये देखो ना, बी सी और क्यू आर पहले से ही गिवन था. तो बी सी इक्वल टू क्यू आर गिवन, तो हो गया देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड. साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंट हो गया, देखो ना, कॉन्ग्रेंट कर दिया है. जो दो क्वेश्चन थे ना, एक ए बी एम पी क्यू एन करना था, वो ये कर दिया, ए बी सी पी क्यू आर करना था, वो ये हो गया. सो यू कैन जस्ट सोल्व लाइक दिस, है ना. पॉज द वीडियो और उसके बाद सोल्व करो, एक बार ट्राई खुद से करो. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. ओके, सी व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4. BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. एक ट्राइंगल दे रखा है ABC. ओके, दिस इज़ द ट्राइंगल वी आर गिवन विद. हाँ, ये ट्राइंगल हम लोगों को दिया हुआ है A B
सी। इसमें ना टू इक्वल एल्टीट्यूड्स, दो इक्वल एल्टीट्यूड दिए हुए हैं, ये बी ई और दूसरा दिया हुआ है सी एफ, सी एफ बी ई, ये दोनों इक्वल हैं, ये वाला और ये वाला एल्टीट्यूड इक्वल है, इट इज़ गिवन। यूजिंग आर एच एस रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट आइसोसेलेस। अब ये कह रहा है आर एच एस रूल लगा के बताओ कि जो ट्राइंगल है ए बी सी वो आइसोसेलेस है। वी नीड टू प्रूव, क्या हम लोगों को प्रूव करना है, ट्राइंगल ए बी सी, जो ट्राइंगल ए बी सी है वो क्या है, इज आइसोसेलेस। This is what we need to prove. Triangle ABC is isosceles. This is what we need to prove by using RHS. It is also given by using RHS. हमें RHS यूज करना है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में. So how do we prove? देख लो, RHS प्रूव कर देंगे. दो ट्राइंगल ले लो, एक ट्राइंगल ले लो BEC. इन ट्राइंगल BEC देखो मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, BEC ये वाला ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल ले लो CFB एंड ट्राइंगल CFB. दो ट्राइंगल लिए BEC और CFB. अब देखो इसमें एंगल 1 इन BEC, एंगल 1 BEC में और एंगल 2 ये ईच 90, तो एंगल 1 इक्वल आ गया एंगल 2 के ईच 90, दोनों क्या है 90 डिग्री. उसके बाद देखो ये एंगल 1 के अपोजिट भी BC, एंगल 2 के भी, तो ये क्या बन रहा है हाइपोटेन्यूज, तो BC इक्वल टू BC. ओके, तो ये क्या है कॉमन, दोनों में कॉमन है. एंड देन देखो BE और CF ये इक्वल दिया हुआ है, BE इक्वल टू CF. राइट एंगल ट्रायंगल वाली देख लो, RHS प्रॉपर्टी लग रही है, इट इज़ गिवन. सो देयरफॉर ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल CFB के साथ बाय कौन सी प्रॉपर्टी, RHS प्रॉपर्टी से ये हो गया कॉन्ग्रेंट. और अगर ये दोनों ट्रायंगल हैं कॉन्ग्रेंट, अगर ये दोनों ट्रायंगल हैं कॉन्ग्रेंट, देखो कौन सा BEC CFB, तो इसका मतलब ये एंगल C और ये एंगल B, मतलब एंगल ABC और एंगल ACB क्या हो गए इक्वल, एंगल ACB इक्वल आ गया एंगल ABC के बाय CPCT से देख लो, इस ट्रायंगल में से मैंने ये एंगल लिया, इस वाले ट्रायंगल में से मैंने ये वाला एंगल लिया, तो ये हो गए कॉन्ग्रेंट. नाउ इफ़ दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, देखो ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड वो क्या होंगी इक्वल. इसके C के अपोजिट साइड देख लो AB, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा AB इक्वल टू B के अपोजिट साइड AC, है ना, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, sides opposite to equal angles you can write. So therefore ABC क्या हो गया, ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle, ABC कैसा ट्राइंगल हो गया, एक आइसोसेलेस. क्योंकि इतना सारा काम हमने कर दिया तो आइसोसेलेस तो होना है ना. देख लो AB और AC इक्वल प्रूव किया हमने, उसकी अपोजिट ये दोनों साइड AB AC दोनों क्या हैं इक्वल, है ना. सो लेट्स discuss about question number 5 then. Okay, ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC. Now this time we are given कि ABC कैसा ट्राइंगल है isosceles. This time we are given with this thing A B C, this side and this side are given equal. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B equal to angle C. ये कह रहा है AP को परपेंडिकुलर कर लो, परपेंडिकुलर कर लिया है, ये P है AP, और ये कह रहा है प्रूव करो कि एंगल B और C इक्वल है. टू प्रूव एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B और C इक्वल दिखाने, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. नाउ जस्ट सी ना, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दो. ये एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP. ये दो ट्रायंगल लिए ABP ACP, एंगल 1 एंड 2 आर इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90. देन AB इक्वल टू AC गिवन, इट इज गिवन, एंड देन AP इक्वल टू AP, इट इज कॉमन. हो गया. देयरफॉर ट्रायंगल
ABP congruent triangle ACP बाय RHS, और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो हम लिख सकते हैं दैट एंगल B एंड एंगल C आर इक्वल, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C बाय CPCT. Okay, so this is the property we have proved. That's all. So this is what you need to do for the exercise. Just try to solve the whole exercise. If you are still having doubt, you can write in chat box. That's all.